they have reasons for having some fear. They are afraid because people will buy multinational companies product, and local markets product will be lagging behind. So this is one of the reason for unhappiness. And second is, Shubham has told that end of local monopoly. Yeah, that's a benefit. That's why people are happy. Okay. And this is a reason for happiness. Yeah. Another answer is from Sujal. He is saying that loss in use of manpower due to technology used by Western countries. Absolutely right answer. Because multinational companies are using hi-fi technology, so they are using capital intensive techniques instead of labor intensive techniques. So because of this, more and more people will be losing their jobs. Also, they yeah, we can take it in both ways. Like one reason for happiness is more people will get the employment, and second reason for unhappiness is the same thing. Like they might be using technology, and they will be replacing the labor. All right, so that's also wonderful answer. So now let us go for the final answer. And so you people have given all the answers correct. Let's revise it, recapitulate it, I want to say. So let me tell you, the question was like, a large number of multinational companies are getting established in your country, and due to the establishment of these companies, some are very happy, but some others are unhappy too. So you were required to express your opinion on it. So, my children, the final answer is like that. You have to write like this. In my opinion, the coming of multinational companies will give both happiness and unhappiness. Then you will write the heading, reasons for happiness. Point number one, increase in employment. Point number two, end of local monopoly. Fine. So these are some of the happiness points. And you will be writing reasons for unhappiness. Like first one is danger to cottage industries. Second is interference in politics of the land. And next is value of Indian product reduced. Yeah, all right, good. So like this, these are the point. Like this, you have to attempt this answer. And in the end, you will be writing, hence, it may be said that the people of both the classes or types are right in their own way. Fine. Those who are happy, they are also, having a valid reason for happiness. And those who are unhappy, they also have the valid reason for unhappiness. So, my dear children, now let's proceed to the next question. And the next question is, these days, several enterprises are being set up through joint venture. All right. These days, several enterprises are being set up through joint venture. Point out any three of the influences of such enterprises on the business world. Fine, we just have to point out any three of the influences of such enterprises on the business world. लाइक आजकल के टाइम पे बहुत सारे जॉइंट वेंचर स्टार्ट हो रहे हैं. आपने कोई भी 3 असर लिखने हैं इसके. 3 इन्फ्लुएंसेस मतलब बिजनेस की दुनिया पे इन जॉइंट वेंचर्स के आने से क्या असर पड़ रहा है. यू जस्ट हैव टू राइट दैट. सो यस, व्हाट डू यू थिंक. सो यहाँ पे एक तरह से इन्होंने हमसे यही कहा है कि जॉइंट वेंचर के मेरिट्स लिखिए. ठीक है, हमें यहाँ पे जॉइंट वेंचर के मेरिट्स लिखने हैं, क्योंकि जॉइंट वेंचर का तो फायदा ही होता है, हमें पता है. ऑल राइट, सो अमित हरचंद हैज गिवन हिज आंसर. ही सेड रिस्क रिड्यूस हो जाता है अगर हम जॉइंट वेंचर कर लेते हैं. या दैट्स राइट आंसर, वेरी गुड. नेक्स्ट. Yes, very good. Sujal has said that ma'am, business get a strong potential. Absolutely right. बिल्कुल सही जवाब है. और what else?
I give it gives more resources. Yes, yes. Joint venture है तो it will give more resources from all the parties, and a resource can be anything. It can be land. It can be it can be machinery. It can be finance. And Amit Harchand is saying that get technological benefits. Yeah, definitely, absolutely right answer. Vanshika has said access to greater resources. Yeah, wonderful answer. Very good. So like this, बहुत फायदा है ज्वाइंट वेंचर का. ऑल राइट, सो वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट लाइक दिस. हम ऐसे लिखेंगे, द फॉलोइंग आर द मेन इन्फ्लुएंसेस ऑन सच एंटरप्राइजेस ऑन द ऑफ सच एंटरप्राइजेस ऑन द बिजनेस वर्ल्ड. फिर हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, डिक्रीज इन बिजनेस रिस्क. ठीक है, जो कि अमित ने बताया था. फिर सेकंड लिखेंगे प्रोग्रेस इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो फिर से अमित ने बताया था. थर्ड लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय वन पार्टी ओनली, जैसा कि हमें सुजल ने बताया है कि ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे तो किसी एक पर्सन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जॉइंट वेंचर है तो दोज हु आर इन्वॉल्व इन इट दे ऑल विल बी प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज. ठीक है, एंड बिजनेस, नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे बिजनेस गेट अ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, जो कि सुजल ने कहा. एंड नेक्स्ट वी विल राइट द पॉइंट विच वाज given by Vanshika कि it is with this we will be having access to greater resources. ठीक है, सो ये हो गया बच्चों हमारा पूरा आंसर. तो ऐसे हम पॉइंट वाइज आंसर लिख देंगे अपना. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट थिंग. एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन, वो बच्चों थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. ठीक है, तो उसके मार्क्स भी ज्यादा हैं. ओके, तो ये 4 मार्क के क्वेश्चन अब मैं आपको करा रही हूँ. बहुत ध्यान से सुनना है आपने. ये भी केस स्टडीज हैं बट ज्यादा मार्क्स वाली हैं. आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज सुनाती हूँ. केस स्टडीज आर वेरी लेंथी इन कंपैरिजन ऑफ 2-3 लाइन्स ना. 2-3 लाइन के क्वेश्चन से केस स्टडीज जो होती है वो थोड़ी लेंथी होती है. और उसमें कोई वी कैन से लाइक 12-13 लाइन्स का क्वेश्चन होएगा. बट द गुड न्यूज इज दिस दैट आंसर इज वेरी स्मॉल. ठीक है जी. सो लाइक व्हेन यू आर सॉल्विंग योर अनसीन पैसेजेस ऑफ इंग्लिश, सो दैट टाइम यू फाइंड दैट पैसेज तो बहुत बड़ा था बट उसमें जो क्वेश्चंस पूछे उनके जो आंसर हैं दे आर वेरी स्मॉल आंसर्स. सो सिमिलरली बेटा, जब आप केस स्टडीज पढ़ते हो तो क्वेश्चन इज क्वाइट लेंथी. इट्स अ पैराग्राफ, बिग पैराग्राफ, बट द क्वेश्चंस आंसर व्हिच यू हैव टू अल्टीमेटली राइट इट इज वेरी स्मॉल. ठीक है, और मार्क्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं कम लिखने में. तो 4 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा ही लिखना पड़ेगा. ओके, केस स्टडीज का एक और होता है बच्चे. केस स्टडीज यू ऑलवेज हैव टू कभी भी आप स्टार्टिंग से मत पढ़ना शुरू करना. ठीक है, केस स्टडीज में क्या है कि आपका एक पैराग्राफ है, डोंट स्टार्ट इट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. सबसे पहले आप लास्ट की लाइन पढ़िए. ठीक है, व्हाट इज देयर इन द लास्ट लाइन, यू हैव टू रीड दैट फर्स्ट. लाइक अब देखिए, मैं सबसे लास्ट लाइन पढ़ रही हूँ एंड द क्वेश्चन इज ऑलवेज इन द लास्ट लाइन. ठीक है, क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू बी set up are being promised by 3 political parties. अब मैंने एक सवाल पढ़ लिया. ठीक है, अब मैं चलूंगी केस को पढ़ने के लिए. मतलब क्वेश्चन पहले इसलिए पढ़ना होता है कि हमें पता होना चाहिए कि ढूंढने क्या निकले हैं. ऐसा ना हो कि पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे और आफ्टर दैट क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर से पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड दैट इफ यू वांट टू सेव योर टाइम, so you should be first reading the last line of the case, find out what you are going to search, and then you start reading the paragraph. एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ रियल लाइफ. लाइक जब हमें कहीं जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अमृतसर जाना है, तो पहले मैं बस में बैठ जाऊंगी, पूरा सफ़र कर लूँगी और फिर अमृतसर आएगा कि नहीं कोई श्योरिटी नहीं है ना. तो पहले क्या करना है, मुझे बस का पढ़ लेना है, उसके ऊपर नेम प्लेट पे अमृतसर लिखा भी है कि नहीं, या ड्राइवर कंडक्टर से पूछ लेना है कि भाई साहब अमृतसर जा रही है या बस. उसके बाद सफ़र करना है, तब मैं पहुंच जाऊंगी अमृतसर. ठीक है, सो सिमिलरली पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है, केस स्टडी में जो लास्ट लाइन लिखी हुई है उसको पढ़ लेना है, फिर ढूंढने निकलना है, फिर पैराग्राफ पढ़ना है. तो चलिए, नाउ क्वेश्चन हमें पता चल गया. द क्वेश्चन इज
ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैराग्राफ, जो भी हम पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके आधार पर एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस टू बी सेटअप। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि कौन से गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस सेटअप हुए हैं, आर बीइंग प्रॉमिस्ड बाय द 3 पॉलिटिकल पार्टीज। सेटअप करने के लिए प्रॉमिस किया गया है पॉलिटिकल पार्टी ने। तो ऊपर की कहानी जो पढ़ेंगे उसमें पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ 3 टाइप के गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस सेटअप करने को बोले होंगे। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि वो 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तीनों क्या बोल रही हैं, कौन से गवर्नमेंट सेटअप फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपने अपने मन में ये रख लेना है कि अच्छा, मैम टोल्ड की गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो है यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस जो है, दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है, आपके ब्रेन में पहले आपने वो कर लेना है, अच्छे से ना वार्मिंग अप कर लेना है। तो यू विल कम टू नो कि एक तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है गवर्नमेंट एंटरप्राइज, सेकेंड इज पब्लिक कॉर्पोरेशन जिसका नाम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी होता है, एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। तो अब आपने ढूंढना है पैराग्राफ में से कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कौन सा वाला गवर्नमेंट एंटरप्राइज खोलने की बात कर रही है इन तीनों में से। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। बहुत attentively sunna, because I love the students who are giving the replies. Clear? So I expect from you all to participate. Once upon a time, a round of election to the 5 legislative assemblies of the country was in progress. The different political parties were putting in the best of their efforts to entice the people through their respective promises to them. The political parties contesting elections in these states were mainly 3 in number. So up to here हमें क्या समझ में आया है बच्चे कि एक समय की बात है, इलेक्शन सिर पे थे और 5 लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस थे हमारी कंट्री में, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो थी ना वो अपने बेस्ट एफर्ट्स लगा रही थी ताकि वो जनता को इम्प्रेस कर सके, और वो कह रही थी, कुछ प्रोमिसेस कर रही थी जनता से। द पॉलिटिकल पार्टीज जो कॉन्टेस्ट में आ रही थी इलेक्शंस के लिए वो 3 स्टेट्स में आनी थी और वो 3 इन नंबर थी, यानी कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कि आपस में कॉम्पीट कर रही थी। Though all the parties made several promises in their respective manifestos, yet each of the 3 parties made one such promise as compelled the people to give a thought to it. हालांकि तीनों ही पार्टीज बहुत सारी प्रोमिसेस कर रही थी जनता को ताकि जनता उन्हें सिलेक्ट करे इलेक्शन में, लेकिन एक ऐसा रीज़न था जिससे जनता सच में सोच में पड़ गई कि किसको सिलेक्ट करूं, क्योंकि उन्होंने तीनों पार्टीज ने कुछ ऐसा प्रॉमिस किया। ठीक है, सो वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज मेड अ प्रॉमिस दैट इफ दे केम टू पावर they would set up such government enterprises in the states as will have the partnership of both the people and government. तो बच्चों, एक पॉलिटिकल पार्टी ने प्रॉमिस किया कि अगर वो जीत गई ना इलेक्शन तो वो एक ऐसा गवर्नमेंट एंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे जिसमें बच्चों ऐसा गवर्नमेंट एंटरप्राइज वो स्टार्ट करेंगे जिसमें पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंट पार्टनरशिप होगी। However, in these enterprises, the ownership of the government shall not be less than 51%. लेकिन ये ऐसे enterprises होते हैं जिसमें गवर्नमेंट की 51% ओनरशिप तो होनी ही चाहिए, यानी कि 51% कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। The setting up of the government enterprises was done as per the provisions of the Indian Companies Act 2013. और ये जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज खोलने की बात कर रही है पार्टी, उसका सेटिंग अप जो होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, कंपनीज एक्ट जो 2013 में बना था उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, कि वॉट एवर रूल्स आर रिटन इन दैट दे विल बी फॉलोइंग दोज रूल्स। The financing of these enterprises would be done jointly by both the people and the government. और जो भी पैसों का बंदोबस्त होगा इन गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में वो people और गवर्नमेंट दोनों की तरफ से पैसा आएगा। The second political party promised that if they came to power, they would set up such government enterprises
as would be completely under the ownership of the government. सेकेंड पार्टी ने कहा कि हम ऐसा पब्लिक एंटरप्राइज ओपन करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट एंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे जिसमें जो ओनरशिप है ना वो 100% गवर्नमेंट के पास होगी, एंड द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग देम वुड नॉट बी पुट अप ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पीपल बट दे वुड बी मैनेज्ड विद द जनरल बजट. उन्होंने कहा कि जो फाइनेंस की ज़रूरत होगी ना इन